Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Session 7 Corporate Laws 2. Topics to be covered include Industries Development and Regulation Act 1951, Registration and Licensing of Industrial Undertakings, Investigations into Scheduled Industries or Industrial Undertakings, Takeover of Management of Industrial Undertakings, Regulation of Price, Supply, Distribution, etc., Authorities under the Act. Next is Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969, Presumptions as to Public Interest Gateways, Difference between MTP and RTP, Unfair Trade Practices, Competition Act 2002, Consumer Protection Act 1986, Essential Commodities Act 1955. First is Industries Development and Regulation Act 1951. The important provisions of the Act relate to the registration and licensing of industrial undertakings, investigation to scheduled industries and industrial undertakings, takeover of management of industries undertakings, regulation of price, supply, distribution, etc., constitution of authorities concerned. इंडस्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस आए थे जिसमें था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की रजिस्ट्रेशन और उनकी लाइसेंसिंग, इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल इंडस्ट्रीज की, प्राइसेस को रेगुलेट करना और सप्लाई को रेगुलेट करना और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना. Next is registration and licensing of industrial undertaking. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो भी ओनर है किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंडरटेकिंग को रजिस्टर करवाए प्रेस्क्राइब मैनर में और प्रेस्क्राइब पीरियड में. जब वो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड हो जाती है तब उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसमें उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंशन होती है. Registration of an industrial undertaking will not be necessary if the undertaking is a small-scale industrial undertaking or is otherwise exempt from the licensing registration provisions of the Act, or where the undertaking concerned is not satisfying the definition of the term factory under the Act. कुछ अंडरटेकिंग्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, उन सब इंडस्ट्रीज की जहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जेम्प्ट है और वहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री वर्ड नहीं कंसर्न है. licensing under the provisions of the Act, a license is necessary under the following circumstances. Notification dated 25/7/1991. These are distillation and brewing of alcoholic drinks, cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes. लाइसेंसिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, सिगरेट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए, हजार्डियस केमिकल्स के लिए, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए. Taking up the manufacture of a new article in the existing licensed industrial undertaking. License for substantial expansion of licensed industrial undertaking. A registrable undertaking not registered.
Provisions of the Act did not originally apply on the account of an exemption order issued by the government and became applicable thereafter as a result of cancellation of the exemption order and under certain other circumstances provided in the Act. In case of the industrial undertaking, the registration in respect of which has been revoked under section 10 and which cannot carry on the business of the undertaking. कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग इतनी नहीं है ज़रूरी, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो शेड्यूल इंडस्ट्री से रिलेट नहीं हो रही है, Investigation into scheduled industries or industrial undertaking. Section 16 provides that if after investigation the central government is satisfied that further action is desirable, it may issue such directions to the industrial undertaking or undertakings consent for all or any of the following purposes. अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो कुछ डायरेक्शंस इशू करती है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला है रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और क्लास ऑफ आर्टिकल्स बाय द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग्स and fixing the standards of production. प्रोडक्शन को रेगुलेट करना और स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना. टेकिंग ओवर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद टेक ओवर करना. टेक ओवर विदाउट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बिना टेक ओवर करना. टेक ओवर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू टेक ओवर करना. रेगुलेशन ऑफ प्राइस, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव था जो था कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन प्रोवाइड की. पहला, कंट्रोलिंग द प्राइसेस एट विच सच आर्टिकल और क्लास देयर ऑफ मे बी ब्रॉट और सोल्ड. प्राइसेस को कंट्रोल करना. Regulating by licenses, permits or otherwise the distribution, transport, disposal, acquisition, possession, use or consumption of any such article or class thereof. Licenses को regulate करना. Prohibiting the withholding from sale of any such article or class thereof ordinarily kept for sale. Requiring any person manufacturing, producing or holding in stock such article or class thereof to sell the whole or part of the articles to such person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order. Regulation of prohibiting any class of commercial or financial transactions to such article or class of articles thereof which are likely to be detrimental to public interest. Authorities under the Act. Act ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो एस्टेब्लिश करे और कॉन्स्टिट्यूट करे दो अथॉरिटीज, जिससे पहली है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो कि एडवाइस करती है कुछ मैटर्स में जो कंसर्न करते हैं
शेड्यूल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या उनके रेगुलेशन के रिगार्डिंग। डेवलपमेंट काउंसिल किसी भी शेड्यूल इंडस्ट्री के लिए या ग्रुप ऑफ शेड्यूल इंडस्ट्रीज के लिए। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली कंसिस्ट करते हैं एक चेयरमैन और बहुत सारे मेंबर्स, और मेंबर्स जो होने चाहिए वो 30 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, और सारे अपॉइंटेड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। वो सारे मेंबर्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई इंटरेस्ट किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ओनर होकर, या किसी भी शेड्यूल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होकर, या कंज्यूमर हो सकते हैं, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हुए हैं प्रोड्यूस हुए हैं शेड्यूल इंडस्ट्री के थ्रू। मेंबर्स के कितने मेंबर्स होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे और क्या टर्म्स होंगी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएंगी। डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स कंसिस्ट करता है जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनर्स किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, या कुछ ऐसे पर्सन जिनको स्पेशल टेक्निकल नॉलेज है उन अंडरटेकिंग्स को लेकर, या कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। जो डेवलपमेंट काउंसिल होता है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एज पर दिस सेकेंड शेड्यूल। जैसे उसका काम होता है टारगेट्स रिकमेंड करना प्रोडक्शन के लिए, नॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी को सजेस्ट करना, मेजर्स को रिकमेंड करना और प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना। Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act 1969। MRTP Act is applicable to all undertakings except undertakings situated in the state of Jammu and Kashmir, since MRTP Act does not extend to Jammu and Kashmir. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act हर जगह एप्लीकेबल है सिवाय जम्मू कश्मीर के, कुछ ट्रेड यूनियंस के और एसोसिएशंस के। ट्रेड यूनियंस एंड अदर एसोसिएशंस ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयज formed for their own reasonable protection as such workmen or other employees. Undertakings owned or controlled by a government company or the government and engaged in the production of specified items of defense and atomic energy. Industrial units under the Currency and Coinage Division of Ministry of Finance. वो सब इंडस्ट्रीज जो इंगेज हैं डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी में बनाने में, या फिर वो सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो इंगेज हैं करेंसी या कॉइनेज डिवीजन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन सब पे MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली महालैनोबिस कमेटी ने 1964 में और मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन ने 1965 में कुछ रिवील किया, कुछ टेंडेंसीज कि जो कॉन्सेंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर का मोनोपोलिस्टिक पावर के थ्रू वो इंक्रीज हो रहा है, और कुछ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं बिजनेस हाउसेस के थ्रू। इसी के तहत MRTP एक्ट आया 1969 में और MRTP कमीशन सेट हुआ 1970 में। MRTP एक्ट का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट ना होने दे एक जगह पे और मोनोपोलीज को प्रिवेंट करे। बेसिकली उसमें कंसंट्रेशन जितना भी था इकोनॉमिक पावर का उसको प्रिवेंट करना उसका ऑब्जेक्टिव था। जितनी भी मोनोपोलीज ट्रेड की प्रैक्टिसेस हो रही थी अनफेयर, उसको रोका। MRTP कमीशन जो है वो एक्ट करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में MRTP एक्ट में।
monopolistic trade practices. Section 2 subsection 1 of the MRTP Act 1969 के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो मोनोपोलिस्टिक हैं, जैसे अनरीजनेबली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई रहते हैं उनके। नेक्स्ट, unreasonably high cost of the production of the goods or the provision of the services, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अनरीजनेबली हाई प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स वो अर्न करते हैं मोनोपोलीज वो बहुत ज़्यादा है। प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। लिमिटेड टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट एज सच कुछ नहीं होती है मोनोपोलीज में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो क्वालिटी होती है गुड्स की वो उतनी अच्छी नहीं होती है, उनमें गिरावट ही रहती है, डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं सेक्शन 33 MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि रिस्ट्रिक्टिव हैं। पहला है रिफ्यूजल टू डील, जो सेलर है एक्चुअली में वो रिफ्यूज करता है डील, वो रिफ्यूज करता है कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने में। टाई अप सेल्स एंड फुल लाइन फोर्सिंग, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें परचेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, एक कंडीशन परचेज के अकॉर्डिंग, ताकि वो कोई गुड्स परचेज करे, वो होता है टाइम अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग। एक्सक्लूसिव डीलिंग में जो सेलर होता है वो अपने हिसाब से गुड को सेल करता है। एक्सक्लूसिव डीलिंग और टाई अप सेल्स में एक डिफरेंस है। टाई अप सेल्स में जो सेलर है वो फोर्स करता है कि एक गुड के साथ दूसरा भी खरीदो, और एक्सक्लूसिव डीलिंग में सेलर होता है वो अपने हिसाब से गुड सेल करता है। जैसे LG और सैमसंग के प्रोडक्ट्स हो गए। कलेक्टिव एग्रीमेंट, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स में बायर्स जो सेलर होते हैं वो सिंडिकेट करते हैं अपने आप को, ताकि वो एक अनरीजनेबल बार्गेनिंग कर सकें। जैसे ज्वेलर्स की यूनियंस होती हैं, जब सेलर्स अपने राइट को फोर्स करते हैं और अनरीजनेबल बार्गेनिंग यूज करते हैं तब वो कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स, डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स में जो सेलर होता है वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। जैसे टूर्स एंड ट्रेवल के पैकेज हो गए। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक एग्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर्स और डीलर्स के बीच में, जिसमें एक प्राइस होता है जिसपे डीलर्स को जरूरी होता है कि वो गुड्स उसी प्राइस पे अपने कस्टमर को बेचे। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द होल्डिंग आउटपुट ऑफ सप्लाई, कोई भी एग्रीमेंट जो लिमिट कर रहा है, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या विदहोल्ड कर रहा है किसी भी सप्लाई गुड्स का, वो टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टिंग और
विदहोल्डिंग ऑफ आउटपुट और सप्लाई कहलाया जाता है। कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी मशीनरी या प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रही हो। बायकॉट, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो एक्सक्लूजन हो जिसका ट्रेड से। प्रेडेटरी प्राइसिंग, कोई ऐसा एग्रीमेंट कि गुड्स को उन प्राइसेस पे बेचो कि कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स ही खत्म हो जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लास और नंबर ऑफ सप्लायर्स, कोई भी एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो कोई भी क्लास या नंबर ऑफ होलसेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को या सप्लायर्स को जहां से गुड्स को खरीदा गया हो। एब्सेंटिज्म फ्रॉम बिड्स इन ऑक्शन, कोई भी एग्रीमेंट जिससे जो पार्टीज हैं वो ऑक्शन ऑफर कर रही हैं सेल ऑफ गुड्स के लिए। Presumptions as to public interest gateways, protection of the public against injury, public को प्रोटेक्ट करना इंजरी के अगेंस्ट। स्पेसिफिक एंड सब्सटैंशियल बेनिफिट्स टू द पब्लिक, पब्लिक को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जैसे सोनी करती है। उसने एक ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स को अपॉइंट किया। डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ अनदर, कोई डिफेंसिव एक्शंस लेकर। नेगोशिएटिंग फेयर टर्म्स विद अ लार्ज सप्लायर और प्रोड्यूसर, फेयर टर्म्स की बेसिस पे नेगोशिएट करना किसी भी सप्लायर या प्रोड्यूसर पे के साथ। एडवर्स इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होना। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जो अर्निंग्स जो एक्सपोर्ट के थ्रू आती हैं उन कम हो जाना। एंसिलरी परमिशिबल रिस्ट्रिक्शंस, restriction not affecting competitors materially, authorized by the central government, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो ऑथराइज किया गया है, अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो अप्रूव्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो पास कर सकते हैं इस गेटवे से। डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, जहां पे रिस्ट्रिक्शन जरूरी होता है ताकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स को मेंटेन किया जाए। डिफरेंसेस बिटवीन द एमटीपी एंड आरटीपी, एमटीपी में जो अथॉरिटी होती है, जो ऑर्डर पास करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और आरटीपी में जो अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती है वो एमआरटीपी कमीशन है। एमटीपी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीआईआर या एमआरटीपी कमीशन रिफर करते हैं, और आरटीपी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएसआईआर, एमआरटीपी कमीशन, कंज्यूमर एसोसिएशन या कोई कंज्यूमर रेफर करता है। एक्शन सीज या डिसिस्ट ऑर्डर के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉम्पनसेशन अवार्ड करना उस फॉर्म में हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, प्रोडक्शन और सप्लाई को रेगुलेट करना, और एक्शन इसमें भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं आरटीपी में भी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, फॉल्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिसलीड करना, उनको गलत दिखाना, एक
सेकेंड हैंड या रिनोवेटेड प्रोडक्ट को सही बना के दिखाना, ओल्ड गुड्स को सही बना के दिखाना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बार्गेन सेल, बेट और स्विच सेलिंग। इसमें बार्गेन प्राइस पे सेल करना, offering gifts or prizes with the intention of not providing them and or conducting promotional contest, gifts prizes distribute करना, लॉटरी गेम्स कंडक्ट करना ताकि उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो सके, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंशन ना हुए कुछ प्रोडक्ट्स में कि उनको कैसे यूज करना है, क्या उनकी कैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या कंटेंट्स है, क्या डिजाइन है, क्या कंस्ट्रक्शन किसकी से की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हेलमेट की सेल हो रही है ISI मार्क के बिना या फिर BIS के बिना तो वो गलत है। होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, होर्डिंग करना, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। Objectives of the Act. As per the preamble to the Act, the Competition Act is to provide for the establishment of a commission or to prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in the market, to protect the interest of consumers, to ensure freedom of trade carried on by other participants in the market in India, and to provide for matters concerned or incidental to the aforesaid objectives. Competition Act का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन रखना, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। सेक्शन 3 ये बताती है कि कोई भी इंटरप्राइज एसोसिएशन किसी भी एंटरप्राइज का या कोई भी पर्सन या एसोसिएशन पर्संस का वो एंटर कर सकता है किसी भी एग्रीमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हो, सब चाहे सप्लाई, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे स्टोरेज, एक्विजिशन या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्वायर करने के लिए। कुछ चीजें हैं इसमें जैसे टाइम अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, exclusive distribution agreement, refusal to deal, resale price, maintenance. Duties of the Commission. Under Section 18, Competition Commission has been charged with the following: to eliminate practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition, to protect the interest of the consumers, to ensure freedom of trade carried by other participants in market in इंडिया। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कंपटीशन कमीशन की कुछ ड्यूटीज थी। पहला यही था कि वो उन सब प्रैक्टिसेस को हटाना जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं। दूसरा, कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन रखना। तीसरा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एक यूनिक लेजिस्लेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला है, इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो हर उन गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट कुछ ऐसे गुड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर रहा हो। इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स वेदर प्राइवेट और पब्लिक और कोऑपरेटिव। हर सेक्टर्स को ये कवर करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कमोडिटी कोऑपरेटिव सेक्टर हो। इट envisages the establishment of consumer protection councils at the central, state and district levels whose main object shall be to promote and protect the rights of the consumers. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाना हर लेवल पर, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के कुछ राइट्स बताए गए हैं। बेसिकली 6 तरह के राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास। पहला है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो प्रोटेक्ट कर रखे अपने आप को किसी भी तरह के गुड से या सर्विस से जो हजारियस हो सकते हैं उसकी लाइफ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसके पास ये राइट होता है कि इन्फॉर्म्ड रहे वो क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइस के बारे में। राइट टू चूज, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो गुड्स को जहां उसकी मर्जी है वहां से खरीदे। राइट टू बी हर्ड, उसके पास राइट होता है कि उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो अप्रोप्रिएट फोरम्स में सुनी जाएं। राइट टू रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल में उसके पास राइट होता है कि वो जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन है किसी भी तरह का, उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस वो फाइल अप कर सके। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो नॉलेज को एक्वायर करे और स्किल को एक्वायर करे ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर बन सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, चाहे कोई कंज्यूमर एसोसिएशन हो रिकॉग्नाइज्ड, चाहे एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर हो, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो। कंप्लेंट्स जो फाइल हो सकती हैं वो किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में हो सकती हैं या किसी भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में, या कोई भी ऐसे गुड्स जो वो लेकर आया है जिसकी वजह से सफर कर रहा हो, या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो उसने हायर की हो या अवेल की हो जिसकी वजह से वो सफर कर रहा हो। अगर कोई भी गुड्स या सर्विस जो कस्टमर ने खरीदा है, अगर उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, अगर उस गुड की कॉस्ट 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो वो अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल कर सकता है। अगर वो 20 लाख से एक्सीड कर रही है, पास 1 करोड़ से कम है, तो वो अपनी कंप्लेंट स्टेट कमीशन में फाइल कर सकता है। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रही है तो वो नेशनल कमीशन में फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। The main purpose of the Essential Commodity
Commodities Act 1955 is to provide in the interest of the general public for the control of the production, supply or distribution of and trade and commerce in essential commodities. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को यही है कि जितने जो जनरल पब्लिक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वो चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल के रिगार्डिंग है या ट्रेड या कॉमर्स के रिगार्डिंग है. At present, only 18 essential commodities are covered under the Act. These are cattle, fodder including oil cakes and other concentrates, coal including coke and other derivatives, and etc. 18 commodities हैं जो essential commodities Act के अंदर covered हैं. पहली है coal, cattle fodder, किसी भी ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट या पार्ट, कॉटन और वुलन टेक्सटाइल, ड्रग्स, फूड स्टफ्स लाइक ऑयल सीड्स एंड ऑयल, आयरन एंड स्टील, पेपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, yarn, ये सब चीजें. सेक्शन 3 इस एक्ट का प्रोवाइड करता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो सप्लाईज हैं उनको मेंटेन करना, लाइसेंस को रेगुलेट करना, प्राइजेस को कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कोई भी इंसिडेंटल या सप्लीमेंट्री मैटर्स है उन पे सर्च करना, उनको एग्जामिन करना, ये सब चीजें इंक्लूड हैं इस एक्ट में. सेंट्रल गवर्नमेंट सीज भी कर सकती है और कॉन्फिस्केट भी कर सकती है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को. कोई भी पर्सन जो कोई भी एसेंशियल कमोडिटी को सेल कर रहा है किसी भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको पे किया जाएगा जो एग्रीड अमाउंट है, जो कंट्रोल जो मार्केट प्राइस है. कोई भी पर्सन है अगर वो ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो गिल्टी कहलाया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो पनिश भी किया जाएगा. कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी कंपनी के द्वारा हुआ है और ये अगर प्रूव हो गया कि वो कमिट हुआ है किसी भी कंसेंट से, चाहे वो डायरेक्टर की नेग्लिजेंस हो, चाहे सेक्रेटरी की, चाहे किसी और ऑफिसर की, तो फिर वो डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर वो गिल्टी कहलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो पनिश्ड होगा. कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट या कुछ भी. Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what is meant by monopolistic trade practices? Second is, in the same question, state the provisions of the MRTP Act with respect to checking of such practices. Second is, what are the rights conferred upon the consumers under the Consumer Protection Act 1986? Explain. That's all for this session. Thank you.